Morning students, today's video is an exercise 3.3 chapter 3 of class 10th. So let's start with this question, that is question number third of the third part. In previous video I solved the first two parts and also the question number 1 and 2, and in from question number 3 I already solved the first two parts. So here is the third part. So let's start with this. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. So a coach of a cricket team. So let's cost of a bat. Let cost of a bat is equal to rupees X and cost of a ball is equal to rupees Y. So here is the cost of a bat and a ball. तो फर्स्ट वन इज द इक्वेशन बनेगी 7 बैट्स और 6 बॉल्स का रेट 3800 है, दैट इज 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, एंड द अदर वन इज 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. तो यहाँ भी हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है. बहुत इजी है हमारे पास. क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशंस में से वैल्यू उठा लेंगे. 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय, अब x क्या आ जाएगा मेरे पास, 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो. पुट इन इक्वेशन 1, 7x की जगह 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800. ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई. सॉल्व करो इनको. तो लेट्स मी सॉल्व इट ऑन द कॉपी so that without delaying any. So after solving the equation with some calculation, I get the 1750 multiplied by 7, 12250, and 7 5s are 35, and after taking the LCM 6 3s are 18y. Now 3 in the denominator goes to that side and multiply with 3800, we get 11400. आगे क्या करेंगे हम, इसमें इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे. 12250 माइनस 11400 इधर आ जाएगा, और इधर 35y में से 18y माइनस हो जाएंगे. तो क्या आ गया मेरे पास, 12250 सब्ट्रैक्ट किया 11400, what I get is, that is, okay, here is the answer, that is 1150. So here is 12250 minus 11400, we get the 850, and 35y minus 18 equal to 17y. Now divide 850 by 17, we get the y, and because 17 is a prime number, so we need to directly multiply. So 17 5s are 85, so here I get the answer, y is equal to 50. y की वैल्यू 50 आ गई. x की वैल्यू निकाल लेंगे. 1750 माइनस 5 इंटू 50 बाय 3, 1750 माइनस 5 5 ज़ा 25, here is 250 divided by 3, here I get the 1750 divided by 250, but minus 250, here I get the 1500 divided by 3, and after cutting 3, 500, here is answer is 500. So the cost of bat is obviously the greater than the ball, so cost of bat is 500 and that of the ball is rupees 50. So here is the answer. So let's erase the board and move on to the next question, that is, now you guys have already gone through with the method of substitution. So in the next 3 questions, that is 4th, 5th and 6th, I will make only the equation. Rest of the part you have to do it by yourself by the method of substitution. For any kind of problem का कोई दिक्कत आ रही है या solve करना है, so do mention in the comment box. I will solve the question in my next video. So the taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charges for distance covered.
अब हम कभी भी कोई कैब या टैक्सी बुक कराते हैं तो उसके एक फ़िक्स चार्जेस होते हैं कि उसके बुकिंग चार्जेस हैं, और उसके बाद जो पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ती है वो अलग से पड़ती है। मान लीजिए मैंने कोई भी कैब बुक करा ली, ठीक है, उसके मुझे बुकिंग चार्जेस पड़े 10 रुपीज़, उसके बाद पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ रही है 5 रुपीज़। 10 रुपीज़ तो फिक्स हैं, वो बुकिंग के हैं, लेकिन जितने किलोमीटर ट्रैवल करूँगा उसकी कॉस्ट अलग से पड़ेगी। सो उसी हिसाब से लिख लेते हैं। सो लेट चार्ज फिक्स चार्ज is equal to x and charges per kilometer equal to y. So क्वेश्चन में क्या गिवन है, for a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is ₹105। x तो फिक्स है, 10 किलोमीटर्स कवर किए 105 बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेकंड आ जाएगी एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए x तो फिक्स रहेंगे, 15y उसको कितने चार्जेस देने पड़े, दैट इज़ 155। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हाउ मच हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हमें x प्लस 25y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें x भी चाहिए और y भी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, इन दोनों में से। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व किया जा सकता है और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारे पास आंसर आएगा। जो मेन पार्ट था इसका, दैट इज स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने, वो मैंने कर दिया। सो लेट्स मूव विद द क्वेश्चन नंबर 5th। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator। फ्रैक्शन हमारी 9/11 हो जाएगी अगर 2 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हमें एक फ्रैक्शन लेट करने पड़ेगी, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, न्यूमिनेटर x एंड डिनोमिनेटर y। इफ वी ऐड न्यूमिनेटर 2 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, x प्लस 2 and y plus 2, fraction becomes 9/11। so फर्स्ट इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 into x plus 2 and 9 into y plus 2। here I get 11x plus 22 is equal to 9y plus 9 2s are 18। here I get 11x minus 9y equal to 18 minus 22, 11x minus 9y, 18 minus 22, that is minus 4। so here is the equation number first। let's move with this second equation, how to make this second equation from the next line। if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। 3 ऐड करना है अब दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन becomes 5/6। again the same process is repeated, 6 into x plus 3, 5 into y plus 3, 6x 18, 5y, 5 3s are 15, 6x minus 5y equal to 15 minus 18, 6x minus 5y equal to that is minus 3। here is the equation number 2। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व हो जाएंगी। इसी में से भी x और y की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट कर दो। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6th ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6th। So 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो पहले तो दोनों की एज लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ Jacob is equal to x and age of son is equal to 1। I am making these videos in hurry because time is very precious thing। ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए मैं हार्डली वीडियोस 16, 17 या 18 मिनट्स में बनाता हूँ। मोस्टली मेरी वीडियोस शॉर्ट होती हैं ताकि आपका देखते टाइम एक तो आपकी आईसाइट पे ज़्यादा असर ना पड़े और दूसरा आपका टाइम भी ख़राब ना हो। बिकॉज द मेन की थिंग इज़ टू क्रैक द बोर्ड एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स इज़ द सेल्फ प्रैक्टिस। सो डू इट बाय योर सेल्फ। द क्वेश्चंस आई लेफ्ट एंड द स्टेप्स आई लेफ्ट फॉर यू टू डू। So here is age of Jacob equal to n and age of son equal to y। What is written 5 year hence, मतलब कि 5 साल बाद। पहले तो इन दोनों की एज में आफ्टर 5 years लिखते हैं। आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, दोनों की एज 5 साल बढ़ जाएगी, x plus 5 and y plus 5।
जकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ये अपने सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई 3y + 15, x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन। जकोब्स एज वॉज 5 years अगो, मतलब कि बिफोर 5 years, 5 साल पहले जाके 5 years, तो दोनों की एज में हम 5 माइनस कर देंगे। बिफोर 5 years जकोब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसकी एज 7 टाइम्स हो जाएगी सन की। दैट इज x - 5 = 7y - 35, x - 7y = 5 - 35, that is -30 = x - 7y. Here is equation number 2. So these are the equations in the question number 6. So with this question the exercise 3.3 is end, and in the next video I will start the other method, that is method of elimination. Do remember what I am saying. The main key thing is self practice. जितने questions खुद solve करोगे बिना देखे, बिना किसी book से solution देखे, उतना better रहेगा. So thanks for watching the video, and do like, subscribe and share, and press the bell icon for the latest update on my channel.